Hello and very good morning, students of class 10th E. I hope you all are well. I just said that I will prepare a video for the next part of the pointer. So, as I said, I'm going to start the second video of the pointer. So, my dear students, without any further delay, let's going back to the just quick review that topic that we have already discussed in our previous class, that what is pointer. So if you remember that, I told you, I think you can see the screen as well. Yeah, wait. Yeah, as you can see the screen. What is pointer? So a pointer can be used to store the memory address of other variable function or even the pointer. The use of pointer allows low-level memory access, dynamic memory allocation, and many other functions. So this is the basic use of pointer, that it is used to store the address of other variable. मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा वेरिएबल जो वैल्यू के स्थान पर एड्रेस को स्टोर करता है उसको पॉइंटर बोलते हैं। मैंने बताया था कि पॉइंटर को यूज करने के लिए हमेशा डेटा टाइप लेते हैं, उसके साथ ये स्टार और विथ वेरिएबल नेम लेते हैं। इसका मतलब डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, लाइक एंड कैर, ये डेटा टाइप हो गया। यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा जो है एक स्टार ऑपरेटर है। इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक ऑपरेटर है, लाइक इंट, ये डेटा टाइप हो गया। ये हमारा स्टार पॉइंटर एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हो गया। तो मैं हालांकि इसको क्लास में कई बार बता चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक सो इट नीड टू डिस्कस फर्दर। और अगर प्रॉब्लम हो तो मैं इसका एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, व्हाट आर द यूज व्हाट हाउ टू यूज पॉइंटर, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट। First of all, we have to initialize that pointer that we are going to use. That this is the way we have to initialize, simply data type with star pointer. Then we have to initialize the pointer values. Like this is value variable whose the data type is integer, and I have assigned the value 10 in this variable. Now I'm starting that I just say that I start a just declare this pointer, and here I am going to add the value of that pointer, right? Here I am just declaring the value of that particular variable in pointer. So these are the basic things that I've already discussed, and this is how we have to dereferencing this. uh, I already explained this thing, the links is already available. So without further delay, let's talk about types of pointers. So there are various types of pointer, like integer pointer. Integer pointer is similar that we have earlier discussed in our video lecture. The second type of pointer is array pointer. My dear student, as I told you that there are various types of pointer. There are various types of pointer. To talk about types of pointer, the various types of pointer. The first one is integer pointer, that I have already discussed. The second one is the second one is uh, array pointer, or third one is double pointer, double pointer. Fourth one is null pointer. Last one is
void pointer. There further more pointers are there, but in our lecture we are going to be mainly concerned about this type of pointer. So first of all, we have already discussed about this array pointer. As I told you that I have already discussed about this pointer. So I'm not waste our time in this pointer. I already discussed in our further video, earlier video. Now, just first of all, I'm going to discuss about array pointer. So, what is array pointer? So, I'm just going to share a talk. Here you can see it is a pointer. It is a pointer that points to the first element of an array. It means that कि ये जो हमारा array होता है उसके पहले element को point करता है. And In in C, the name of the array itself act as a pointer of the first element. जो हमारा array का name होता है वो ही pointer variable के तरीके वर्क करता है. इसको हम आपको एक छोटे एग्जांपल मैं इसको एक समझाना चाहूंगा. लाइक ओके, वेट. सपोज मैं एक पॉइंटर लेता हूँ, एक कमेंट डाल लेता हूँ, एरे पॉइंटर, एरे पॉइंटर. एक हेडर फाइल डाल लेता हूँ. ये मेरी एरे फाइल हो गई. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव डिक्लेयर एन एरे. मैं एक एरे बना लेता हूँ. सपोज मैं उसका नाम ए आर दे देता हूँ, लाइक दैट. सपोज आई मीन आई जस्ट डिक्लेयर सम वेरिएबल्स लाइक 10, 15, 20 and 25. At random value, I just give thus four variables because I'm taking a very simple example. So this is an array that we have already know. Now the important point is I will take a pointer like this. That's ptr. Here is the pointer and this is the pointer variable, and here I'm going to give the address of array. So by default, this array will store the memory address of array of 0. ये पॉइंटर वेरिएबल एरे ऑफ 0 का मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा. हो सकता है कुछ भी उसका एड्रेस हो सकता है, राइट. तो बाय डिफॉल्ट ये एरे ऑफ 0 का एड्रेस स्टोर करेगा. तो अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, पॉइंटर को प्रिंट कराता हूँ मैं, रन कराता हूँ. यू कैन सी दैट. मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूँ. ओ जैसा एरर, आई थिंक आई मिस दिस सेमीकोलन. दैट्स कूल. That's okay. I think the code runs absolutely fine. Let me check. Now going to run this program. Here you can see this is the memory address of that pointer, that array 0, array of 0. This is the memory address. That 6487522. 6487522. इस नंबर को याद कर लीजिए कि कुछ पिक्चर अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके की बनेगी ये पिक्चर. आई मीन एक सी पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी. लाइक अगर मेरा कोई ये एरे है, मेरे वेरिएबल है, 4 वेरिएबल ले लेता हूँ. फिर स्पेस बना तो 1, 2, 3 is the last one, 4. And again, if I just write the values of that array like 10, 15, 20, 25, I think यही मैंने वैल्यूज दी थी. लेट मी चेक.
यस, यही वैल्यू थी। सो वेट, यस, ये एरे हो गया हमारा। नाउ यू कैन सी दिस। इसका मैं कुछ इंडेक्स डाल देता हूँ आपको। मैंने इंडेक्स वैल्यू दिखाई थी पूरे प्रोग्राम में, आपको याद होगा 64। इस प्रोग्राम की इंडेक्स वैल्यू है लाइक 64 64 8 7 5 2 2। मैं कॉपी करता हूँ, देखो शायद कॉपी हो जाए। 64 8 7 9 2 2। ये वैल्यू आपको पता है कि अपने हिसाब से कंपाइलर डिसाइड करता है, तो इसमें मेरा कोई खास रोल है नहीं। राइट, ये फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू हो गई। मैं उसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये इंडेक्स वैल्यू हो गई। इसके बाद इस 4 बाइट का एक वेरिएबल होता है, इसको हम लोग थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। 22 में फोर 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 और ऐड कर दो, दैट इज 26। तो आपको पता है एरे कंटिन्यूअस मेमोरी में होता है। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, दैट इज 30। 4 बाइट और हो गए, 26 में 4, 30। इसके बाद 4 वेरिएबल और ऐड कर देता हूँ लाइक यस, 34। ये देख सकते हैं, ये हमारा एरे का इंडेक्सिंग हो गई। ये एड्रेस मेमोरी एड्रेस हो गया। और अगर इसकी इंडेक्सिंग की बात करें, अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग की बात करूं, तो मैं इंडेक्स बना देता हूं। इंडेक्सिंग की बात करूं तो ये एरे ऑफ 0 है, ये एरे ऑफ 1 है, दिस इज एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3। Here you can see this is the entire equation। ये हो गया है पूरा सीन। अब जब से मैंने ये लाइन लिखी थी, अगर आप ध्यान दिया हो, अगर आपने, मैंने अपने कोड में एक लाइन लिखी थी, ये 2 लाइंस। इन 2 लाइंस की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। इन 2 लाइंस की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। मैं अगर अपने प्रोग्राम को उसको, तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इन 2 लाइंस को लाइक दिस। तो ये वो लाइंस, ये हमारा एरे हो गया है। मैंने इस टास्क को डन कर दिया है। आई हैव डन दिस टास्क। मैंने एक टास्क ऑलरेडी डन कर दिया है लाइक दिस। बट if you talk about this variable, this is a pointer, this is pointer। आपको पता है ये पॉइंटर है। इसका कुछ इमेज इस तरीके से बनेगा लाइक, वेट, ओके, इसका कुछ इमेज इस लाइक, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। वेरिएबल पॉइंटर, ये पॉइंटर वेरिएबल है जो कि मैंने बना रखा है, और ये स्टोर करेगा एरे इंडेक्स ऑफ 0। एरे इंडेक्स ऑफ 0 क्या है? एड्रेस ऑफ इंडेक्स 0। एड्रेस ऑफ इंडेक्स 0 क्या है आपको पता है ये बार अच्छी तरीके से। ये एड्रेस ऑफ इंडेक्स है, दैट इज लाइक, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0। तो ये पॉइंटर वेरिएबल इसके एड्रेस को स्टोर करेगा। आपको पता, पॉइंटर वेरिएबल सिर्फ एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ पे कौन सा एड्रेस स्टोर होगा आपको पता है? ये मुझे पता है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई मीन, सॉरी, मैं यहाँ पर ये एड्रेस वैल्यू डाल दूंगा, दैट इज 64 64। और साइज छोटा कर देता हूँ ताकि यह इजिली फिट हो जाए। दैट इज 64 8 7 2 2।
6487 922, सॉरी आई थिंक मैंने 9 मिस कर दिया। 6487 922, राइट, इज द array of this address of that array 0 that is stored in this pointer variable. And if I'm going to print the line, like मैंने अगर इस लाइन को प्रिंट कराता हूँ, लाइक मैं अपने प्रोग्राम में इसको प्रिंट कराता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने पूरे प्रोग्राम में इसको प्रिंट कराता हूँ, लाइक आप देख सकते हैं इसको। अगर मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे एड्रेस प्रिंट होगा, दैट पर्टिकुलर वेरिएबल ऑफ एरे जीरो, एड्रेस ऑफ एरे जीरो। तो यहाँ पे एड्रेस जो एरे जीरो का था, आपको पता है, इसके लिए मैंने कंपाइल किया था और रन किया था, तो आपको याद आउटपुट क्या आया था? आउटपुट आया था लाइक दिस, 648587 522, यही मेरा इंडेक्स था, और यही एरे ऑफ जीरो का एड्रेस था, 64857922, राइट। अब हो सकता है बस ये अरे, अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हम अगर इस वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, यानी इसको जो डी रिफर कर रहा है, यानी ये 6487 922, ये एरे इंडेक्स ऑफ जीरो को, के एड्रेस को शो कर रहा है। अगर मैं इस एड्रेस की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे डी रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। डी रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज क्या कहता है मुझे? डी रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है, लाइक डी रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है, लाइक मैं यहाँ पे मुझे जो एरे इंडेक्स ऑफ जीरो की वैल्यू है, दैट इज 10, वो प्रिंट करानी है। इसके लिए डी रेफरेंसिंग के लिए मैंने जस्ट इसको पॉइंट कर दिया, डी रेफरेंसिंग, डी रेफरेंसिंग ऑफ एरे जीरो, एरे जीरो को डी रेफर करता है। और अगेन मैं यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, कंपाइल करा करके, बस तो देखिए वो वैल्यू आ गई। सॉरी, थोड़ी सी मैं थोड़ा सा आपको प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी, लाइक कंफ्यूजन नहीं हो गया थे। ये देख सकते हैं, ये 10 वही है जो मेरी लास्ट वैल्यू में आता था, जो मेरे लास्ट फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है। चाहे तो उसको आप मैसेज से सही कर सकते हैं, बट इतना टाइम नहीं है अपने पास, लाइक दिस। अगर सेकंड, या कि जिस जो की वैल्यू, 15 है, उसको प्रिंट करना है, तो उसके लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। यहाँ पर जो पॉइंटर है, उसमें +1 ऐड कर दो, +1 ऐड कर दो, और उसके एरे को प्रिंट करा दो। यानी कि जो 15 है, पॉइंटर का जो एड्रेस है उसमें +1 कर दो, यानी इंडेक्स की वैल्यू में +1 कर दो। देखिए 15 प्रिंट हो गया, राइट। इसी तरीके से अगर मुझे नेक्स्ट वैल्यूज प्रिंट करानी है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट प्रिंट करा देता हूँ डी रेफरेंसिंग के कॉन्सेप्ट से। क्लास में मैं पहले ही वीडियोस बना चुका हूँ, आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो शायद आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। एग्जीक्यूट, कंपाइल, सॉरी, ये देखिए 10 15 20 25, यही मेरी वैल्यू थी एरे की। ये मैंने इसको प्रिंट करा दिया इजीली बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डी रेफरेंसिंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, या एमसीक्यू में पूछ सकता है क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन का जो सॉफ्ट, मतलब जो कोड है, सोर्स कोड, मैं आपको शेयर कर दूंगा। हम्म, जरूरत पड़ेगी तो आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरे कोड का। बाकी मैं तो प्रोवाइड कर ही दूंगा सब कुछ। नाउ, अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ अब मैं बात करता हूँ
तो दूसरे टाइप का पॉइंटर मैंने बताया था आपको, रेडिस। डॉक में चलता हूँ इफेक्ट आपको दिखाने के लिए। जब नोट्स में शेयर कर रहा था आपको, तो मैंने बताया था कि एक होता है पॉइंटर डबल पॉइंटर। पहले मैं डबल पॉइंटर बताना चाहूंगा। अ डबल पॉइंटर इन सी, a double pointer in C is a pointer that points to another pointer, meaning store the memory address of other another pointer। यानी ये दूसरे पॉइंटर की मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना चाहूंगा, शायद प्रोग्राम मैंने बना भी रखा था। इसको मैं पिक्टोरियली आपको समझाना चाहूंगा। ये प्रोग्राम एक बना रखा हुआ है। मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करता हूँ। हम्म, मैं अपने पुराने कोड को हटा देता हूँ, ताकि फ्यूचर ओ ओ ओ ओ ओ ओ आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई, मैंने स्क्रीन बंद कर दी सारी। ओके, नो प्रॉब्लम। हम लोग स्मार्ट लोग हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। राइट। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपसे। मुझे कोड बस कुछ वो मेहनत, मुझे कोड थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट प्लीज, ये चलता है। आई थिंक हमें कुछ सीखना होता है, तो वी हैव टू डू सम हार्ड वर्क। ओके 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 ओके, डेट सी है, नो प्रॉब्लम। कोड कर देता हूँ फॉर वेब टू शो डबल पॉइंटर के लिए मैं भाई कुछ चीजें कॉपी कर देता हूँ। एज इंक्लूड और लो, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल कुछ कोड प्रिंट किया था। मेरे पास ऑलरेडी एक कोड है, दिया हुआ है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम है इस कोड में, चेक कर लेता हूँ अभी, चेक कर लेता हूँ। ये डॉक कोड मैंने डॉक में दे रखा है, नो प्रॉब्लम। अब मैंने क्लास में भी इसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो मैं एक बार एग्जीक्यूट करा देता हूँ, कंपाइल कराता हूँ। आई थिंक इट्स फाइन। नाउ जस्ट रन द कोड। हियर यू कैन सी डी रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो गया है यहाँ पे। आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। अब इस कोड में किया क्या गया, इसको समझ लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक इंटीजर नाम का वेरिएबल, एक इंटीजर डेटा टाइप में नम नाम का वेरिएबल लिया, जिसमें वैल्यू असाइन कर दी 10। आफ्टर दैट आई विल टेक अ पॉइंटर वेरिएबल दैट नेम इज पॉइंटर 1, और वहां पर नंबर नाम की वैल्यू को, नंबर का जो एड्रेस है उसको स्टोर करा दिया। आपको पता है मेथड ऑपरेटर जो है एड्रेस स्टोर करने के लिए यूजर में आता है। और यहाँ पर मैंने लाइन नंबर 7 में पॉइंटर 2 में पॉइंटर नंबर 1 का एड्रेस स्टोर करा दिया है। इसको कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसकी इमेज को ड्रॉ करूं, लाइक, अगर मैं इसकी इमेज को ड्रॉ करूं, अगर मैं इसकी इमेज को ड्रॉ करूं, लाइक, मेरे पास ये एक नम नाम का वेरिएबल है, ये एक पॉइंटर 1 नाम का वेरिएबल है, और ये पॉइंटर 2 नाम का वेरिएबल है। लाइक दिस इज नम, दिस इज वेरिएबल नम। ये थोड़ा इसको बड़ा करना चाहिए, आई थिंक। दिस इज वेरिएबल नम, ptr1, दिस इज ptr2। जैसा मेरे प्रोग्राम में था, मैंने नम नाम के वेरिएबल में वैल्यू असाइन करी, ठीक है ना, आप पीडीएफ में देख सकते हैं कोड में।
बैक करके यहाँ पर मैं पॉइंटर वन में एड्रेस स्टोर कराता हूँ नम का। तो सपोज यहाँ पर जो एड्रेस है नम का, सपोज 1000, इट इज 1000। यहाँ पर इट इज 2000, वैल्यू एड्रेस इट इज 3000। नाउ यू कैन सी this is a pointer variable, so this will point the address of num variable. So like this is store 2000, I mean 1000. Pointer one store the address of num, and pointer two store the address of pointer one, because pointer two also 2000. So this code means that, अगर मैं आपको इस कोड को स्नैप देके दिखाऊं, लाइक ये जो वैल्यू दे रखी है उसमें, अगर मैं अपने कोड को मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो देखिए हर लाइन का अपना एक मतलब है। एवरी लाइन हैव इट्स ओन मीनिंग, सो यू कैन सी दिस। ठीक है, देखिए नम वन में मैंने 10 को प्रिंट कराया, पॉइंटर वन में नम के एड्रेस को प्रिंट कराया, दैट इज 1000। और पॉइंटर टू में मैंने पॉइंटर वन के एड्रेस को स्टोर कराया है। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। आपको बाकी सारे कॉन्सेप्ट पता है डीरेफरेंसिंग के, तो यू कैन इजिली गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉइंटर इज नल पॉइंटर। Next type of pointer is null pointer. Yes. Next type of pointer, null pointer. A null pointer in C is a pointer that does not point any valid memory location. It is often used to indicate that a pointer is not assigned any address or sign at the end of the list or structure. इसका मतलब ये है मेरे बच्चों की नल पॉइंटर किसी भी एड्रेस को स्टोर नहीं करता। जब हम अपने प्रोग्राम को, अपनी एरे को या लिस्ट को टर्मिनेट करना होता है, देन इट्स सजेस्टेड दैट वी हैव टू पॉइंट दैट पर्टिकुलर पॉइंटर टू नल। जैसे ही हम लोग नल को पॉइंट करते हैं, इट शोज नथिंगनेस। तो आई थिंक इतना ही सफिशिएंट है इसके लिए। नाउ एक और पॉइंटर है जो वाइल्ड पॉइंटर है, जो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। द वाइल्ड पॉइंटर refers to the pointer that does not have initialized and may not to be an arbitrary or random memory location. Unlike a null pointer, which is explicitly assigned the value null, while pointer point to unpredictable address and can lead to a serious issue like crash or memory corrupt if it derefracted. So कहने का मतलब ये है कि वाइल्ड पॉइंटर में हम लोग थोड़ा सा वाइल्ड यानी कि थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं। जब हमको यही आइडिया नहीं होता कि हमारा प्रोग्राम कब बंद होगा, तो हम उसको नल भी असाइन नहीं करते हैं। तो इसमें कभी कभी मेमोरी क्रैश होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए इसका बिहेवियर बहुत सिक्योर नहीं होता है, इसीलिए इस पॉइंटर को थोड़ा अवॉइड किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंटर इज ड्रैगलिंग पॉइंटर। A dangling pointer in C is a pointer that points to a memory location that has been feared or deallocated. When memory point refers to is freed or goes out of the scope, pointer still holds the memory address of, but the memory itself no longer valid. Pointer to undefined behavior, such crash or corrupt data. So I think इतना ही sufficient है। So this is how I wind up this video. I hope you enjoyed this, and if you have any problem, please share me your problem. Thank you and have a nice day.